students. So till now we have already started the chapter of animal tissue, and there we have studied and discussed what is tissue actually, what we mean by tissue, and what are the different types of tissues are there on the basis of their location and origin. So basically we have divided the tissue in some categories, like basically we have divided tissue in basically 4 categories. So first one is your epithelial tissue, then the next one is your connective tissue, third one is your muscular tissue, and the last one we know that is your nervous tissue, right? So we have discussed about the epithelial tissue and their types in detail, and we were discussing the last part of the epithelial tissue, last type of the epithelial tissue in the last video lecture, where I was discussing about the pseudo-stratified and transitional epithelial tissue, where at the end I was discussing about the transitional epithelial tissue. So before we move forward or go to the next topic, let us just we need to discuss a small point regarding the transitional epithelial tissue. Then we will move on today. तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू हमने क्या देखा था? इट इज अ स्ट्रैटिफाइड मल्टी-लेयर टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ cells, right? And when there are multiple layers of the cell, that means there is a formation of strata or the stratification or band formation there. We can see it very clearly. The same thing is happening in this case of pseudo-stratified, in case of these transitional epithelial tissue. अब इसमें फर्क क्या है? We have seen that this type of tissue, what we can get the location of the tissues. Basically we can find almost in all part of the urinary system, and because of that, because it is present almost in all part of the urinary system, it is also known as urothelium. क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम के मैक्सिमम जो पार्ट है उसमें हमें मिलता है और हर जगह पे हमें मिल जाएगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूरोथीलियम. लेकिन प्रिसाइसली अगर हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लडर की, जो यूरिनरी ब्लडर है वो क्या होता है ना, इलास्टिक होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है. क्यों? जब यूरिन उसमें सीक्रेट होता है, यूरिन जब उसमें डिपॉजिट होता है, तो वॉल्यूम जब यूरिन का बढ़ेगा तो जो वॉल्यूम है आपका यूरिनरी ब्लडर का वो भी इंक्रीज होता है थोड़ा, ठीक है ना. तो वो जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है. यूरिनरी ब्लडर जो है इट इज इलास्टिक इन नेचर. वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज it is made up of transitional epithelial tissue. Because it is made up of transitional epithelial tissue, that is why it is having the flexibility or elasticity. थोड़ा सा समझते हैं. होता क्या है कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो मल्टी लेयर्स है, मतलब बहुत सारे लेयर एक के ऊपर मतलब जो सेल के लेयर उससे बना है ये टिश्यू. तो जब ये स्ट्रेच करता है, जब ये एक्चुअली मान लीजिए जब वॉल्यूम जब बढ़ता है यूरिनरी ब्लडर का, तो उस समय क्या होता है कि जो मल्टीपल लेयर्स है दे आर एक्चुअली रिड्यूस इनटू फ्यू लेयर्स. जो बहुत सारे लेयर्स है वो घट के 2-3 लेयर हो जाते हैं, और बाकी जो मान लीजिए 10 लेयर है, तो 10 लेयर क्या होगा, they will adjust among themselves and they will finally form 3 to 4 layers. तो 10 से कितने लेयर बन जाएंगे? 4 से 5 लेयर, 2 से 3 लेयर ऐसा बन जाएंगे. मतलब जो 10 लेयर है वो एक दूसरे के साथ मतलब एडजस्ट होकर जो लेंथ है, जो आपका स्ट्रेचेबिलिटी है, उसको बढ़ा दिया. ठीक है, ये होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो हमें कहां मिलेगा? उस तरह के पार्ट्स में, बॉडी पार्ट में जहां पे इलास्टिसिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पे. ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट रहता है जो यूरिनरी सिस्टम है उसके चारों तरफ, मतलब हर जगह मैक्सिमम एरिया में हमें मिलता है यूरिनरी सिस्टम में, इसीलिए हमें इसका दूसरा नाम हमने क्या दिया? यूरोथीलियम. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. Now before we move on to the next topic, that is your next tissue, that is the connective tissue, I need to discuss the basic, finally I need to discuss the functions what you cannot see on the screen, but you have to listen to me and you can just pause the video and write down the points, right? तो हम क्या बात करेंगे अभी? functions of epithelial tissue. टिश्यू जो है epithelial tissue, जो उसके जो functions क्या है, basically epithelial tissues के बहुत सारे functions हमने डिस्कस किया है, तो हम उसको सेग्रीगेट करेंगे, हम एक एक करके बात करेंगे. पहला है प्रोटेक्शन. See, the epithelial tissue or epithelial tissue, they protect the underlying tissues from mechanical injury, entry of germ, harmful chemicals and drying up. इसको थोड़ा समझते हैं. हमारा जो स्किन है वो भी क्या है? इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो आप इमेजिन करो कि हमारा अगर स्किन नहीं होता हमारे बॉडी में, तो क्या प्रॉब्लम होता? बहुत सारा प्रॉब्लम होता. पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अस
are protection from mechanical injury which is present. Actually, the tissues which are present inside the skin, ठीक है, स्किन के नीचे अंडर द स्किन क्या है हमारे पास, मस्कुलर टिश्यू है, अदर सेंसिटिव टिश्यूज वो है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यूज है। तो अगर स्किन नहीं होता तो डायरेक्ट इंजरी हो सकता था उसमें, इसीलिए हम ये मान सकते हैं, हम ये जानते हैं कि स्किन क्या काम करता है, इट इज वर्किंग एज अ प्रोटेक्ट, फिजिकल प्रोटेक्टर बैरियर। दूसरा क्या है, अगर स्किन एक्सपोज होता तो जो वाटर लॉस होता हमारे बॉडी से वो भी ज्यादा होता। So another way it is also helping us to conserve water in our body. That means it is helping us from drying up. थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में कट हो गया, कभी ना कभी तो आपके जीवन में आपका हाथ या पैर में कभी ना कभी तो कहीं कट हो गया होगा, आपने तो देखा होगा कि ब्लड निकलता है, उसके बाद क्लॉटिंग हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो घाव भर जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका स्किन एक पार्ट मैंने आपके बॉडी के या हमारे किसी इंसान हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी बॉडी के किसी पार्ट से एक थोड़ा सा हिस्सा स्किन का हम निकाल लेते हैं, तो आप बताइए उस स्किन जहां से निकल गया वहां पे जर्म्स जो है वो जैसे बैक्टीरिया है या दूसरे जो जर्म्स है वो वहां पे अटैक करके वहां पे ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे? ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्किन है इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड एज वेल एज फ्रॉम जर्म्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे भी हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है, हमें बचाता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन है। अगर हम इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि स्टमक का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है या हमारी इसोफेगस का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ऑर्गन का जो लाइनिंग्स है, तो ये सब जगह पे हमें क्या मिलेगा, ये आपके एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे व्हिच इज हैविंग अ फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। सिर्फ प्रोटेक्शन काम है क्या, फंक्शन है क्या, और भी फंक्शन से बात करते हैं। पहला प्रोटेक्शन था, दूसरा क्या है, सिलेक्टिव बैरियर्स। सिलेक्टिव बैरियर्स मतलब एपिथेलिया एक्चुअली चेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल और नेसेसरी मटेरियल्स। मतलब एपिथेलिया जो है हमारे बॉडी में जो आउटर मोस्ट और जो द फर्स्ट लेयर जो होता है, ये क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस से भी हमें बचाता है ताकि हम हार्मफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब ना करें, ठीक है ना। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है, लेट अस डिस्कस। एपिथेलियम ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्टिव। हमने बात किया था कि माइक्रोविलाई के बारे में हमने बात किया था कि देयर आर मॉडिफिकेशन व्हाट वी कैन सी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हाट वी कैन सी इन द एपिथेलियम। तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो किस लिए, क्या काम है, इंटेस्टाइन में हमें माइक्रोविलाई विली और माइक्रोविली हमें मिलता है, तो काम क्या है उनका इंटेस्टाइन में, स्टमक में क्या काम है, जो हमने खाया है, जो हमने कंज्यूम किया है, उसका जो न्यूट्रिशन जो हमें मिलता है, फाइनली जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। सिर्फ स्टमक और इंटेस्टाइन में भी ऐसा होता है और कहीं होता है क्या, हाँ होता है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वहां पे भी ऐसा होता है, ठीक है। और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है, नेफ्रॉन्स में होता है, किडनी में होता है, ठीक है। वहां पे एब्जॉर्प्शन का जो मतलब पर्पस है वो अलग है, वहां पे हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो हम डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर आएगा किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नाउ कंडक्शन। कंडक्शन है नेक्स्ट फंक्शन। सीलिएटेड एपिथेलिया जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी और जेनिटल ट्रैक्ट में हमें मिलता है, इट सर्व टू कंडक्ट द म्यूकस और अदर फ्लूइड इन द डक्ट्स द लाइन। देखो अभी जो कंडक्शन में कैसे हेल्प करता है, इसके लिए हमें थोड़ा समझना होगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो लंग्स है, हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि और भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इन केस ऑफ फीमेल, तो वहां पे जो कंडक्शन मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, हेल्प करना किसी चीज को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने के लिए। जैसे स्पर्म अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आया तो उसको मूव करवाने के लिए जो आपके एपिथेलिया है उसमें जो सीलिया होता है वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, जिससे कि स्पर्म को टारगेट एरिया में रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। सो विल डिस्कस ऑल दैट इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। Right. Next is excretion. The epithelium of uriniferous tubule is specialized from urine formation for excretion. अभी हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन आपका इंटेस्टाइन एंड स्टमक में नहीं होता। देखिए ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ
कि किडनी के थ्रू जब ब्लड जाता है तो हमारे पहला क्या होता है, ब्लड फिल्टर हो जाता है। तो उसमें फिल्टर में क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ब्लड में तो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, क्योंकि ब्लड जो है इंटेस्टाइन से जो जो न्यूट्रिशन हमने एब्जॉर्ब किया वो ब्लड में चला गया, एंड थ्रू द ब्लड इट विल गो ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ऑल द डिफरेंट सेल्स टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, राइट। तो क्या होगा, जो ब्लड जब हम हमारे किडनी के थ्रू फिर मतलब ये जाता है तो ये फिल्टर होता है, और फिल्टर होने समय क्या होता है कि बहुत सारा न्यूट्रिशन भी फिल्टर हो जाता है। तो न्यूट्रिशन अगर फिल्टर हो गया वो हम अपनी यूरिन के साथ निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हम क्या करते हैं, जो फिल्टर जो हो गया उस फिल्ट्रेट से हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोसेस होता है, उससे हम क्या करते हैं, वापस जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से जो फिल्टर हो चुका था उसको हम वापस रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसमें भी हमें ये एपिथेलियम हेल्प करता है, एपिथेलियल टिश्यू वहां पे रहता है, वो हेल्प करता है। वो हम डिस्कस करेंगे जब वो चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेंसेशन में हम हेल्प करता है, सेंस ऑर्गन में भी हमें हेल्प करता है सेंसेशन के लिए, जैसे कि फॉर लाइक हियरिंग, स्मेलिंग, है ना। तो इस सब में हमें हेल्प करता है, जैसे जो हमारे ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं हमारे नोज में, हमारे हमारे नाक में, हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर, सो दैट सॉरी नॉट नॉस्ट्रिल के अंदर, गलत बोल रहा हूं मैं, olfactory epithelium होता है, not lobe. Olfactory lobe is present in the brain. Olfactory epithelium is present inside the nostril, internal nostril. So please correct it, okay? Olfactory lobe जो होता है वो ब्रेन में होता है, जो कि हमारे स्मेल सेंस को डिटेक्ट करता है। लेकिन olfactory epithelium जो होता है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल में, हम कुछ भी अगर जब हम कुछ भी स्मेल करते हैं, हम जब कुछ भी सूंघते हैं तो हमें वो पता कहां से चलता है, क्योंकि हमारे नाक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है और वो सिग्नल ब्रेन को भेजता है। ब्रेन में हमारे पास ऑल्फैक्टरी लोब है, तब हमें पता चलता है कि हमने क्या स्मेल जो है उसको डिटेक्ट किया, ठीक है ना। सो दिस आर दी सम ऑफ दी फंक्शंस दैट वी नीड टू नो। देयर आर अदर फंक्शंस लाइक रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन में क्या होता है, व्हेन देयर इज एपिथेलिया आर इंज्योर्ड देन द एक्चुअली इट रीजनरेट मोर रैपिडली देन द अदर टिश्यू। मतलब आप देखना, आपके अगर हाथ, आपके स्किन में थोड़ा सा कट हो जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि अगर आपको डीप कट हो जाए मसल के अंदर हाथ में, तो उसको देखना ठीक होने में समय लगता है। तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि जो एपिथेलियल है उसका जो रीजनरेशन कैपेसिटी है, ठीक होने का जो कैपेसिटी है वो फास्ट है कंपेयर टू द अदर टिश्यूज, ठीक है। एंड जैसे हमने बात किया कि लंग्स में हमारे जो एल्वियोलाई होता है उसमें जो है वो वहां पे भी एपिथेलियल होता है, व्हिच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल, दैट इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन, राइट। एंड एपिथेलियल हमने पहले भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, इसके पहले, कि जो ग्लैंड्स होता है वो भी बनाता है एपिथेलियल, वो क्या करता है, सीक्रेट करता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, सूडोरिफिलस ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है ना। तो ये जो सारे ग्लैंड्स है वो भी एपिथेलियल से ही बनता है, एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। उसका काम क्या है, तो सीक्रेट सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस for physiological activities, right? So these are certain functions of epithelium that we need to discuss, or epithelial tissue. Now we'll move on to the next topic, that is the next tissue, that is your connective tissue. Connective tissue, देखो पहला सबसे पहले हमें ये जानना है, connective tissue is the most abundant and widely distributed tissue in the body, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में क्या, कौन सा टिश्यू हमें मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। इसका रीजन है, पहले हमें जानना होगा कनेक्टिव टिश्यू है क्या, क्या फंक्शन है इसका, क्या काम करता है हमारे बॉडी। देखिए कनेक्टिव टिश्यू ये है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मान लीजिए मसल के साथ बोन को जोड़ना, बोन के साथ मसल को जोड़ना, बोन के साथ बोन को जोड़ना, या फिर किसी इंटरनल पार्ट में हमारे जो ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट करना, ठीक है। या फिर हम ब्लड का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पूरे बॉडी में एक दूसरे के साथ, हमारे बॉडी में हर एक सेल तक ब्लड पहुंचता है, क्यों, बिकॉज आवर सेल नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स and also the gases, that is oxygen, exchange of gases, and that is all done by, those things are done by blood, and blood is also connective tissue, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे बॉडी में जो भी टिश्यू सबसे ज्यादा होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल वन बाय वन, ठीक है। अब देखो जो ऑरिजिन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। ऑरिजिन है कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज दे आर मेसोडर्मल ऑरिजिन, which germ layer the connective tissue is actually forming, originating, that is from the mesoderm. That's why we call it as that connective tissue are mesodermal in origin, okay।
Now, connective tissue connects different tissues or organs and provides support to the various structures of animal body. हमें अभी मैंने आपको बताया कि जो कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है, ये बहुत सारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और हमारे बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करता है या सपोर्ट करता है, जिसके लिए हम बहुत आसानी से अपना लाइफ या फिर हमारा जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको कर पाते हैं, ठीक है। Now there are some basic components of connective tissue, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किस किस चीज से बनता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्पोजिशन क्या है। कनेक्टिव टिश्यू अगर हम देखेंगे, हम स्टडी करेंगे, हम हिस्टोलॉजी में अगर देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू को, तो हमें क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू किस किस चीज से बनता है, क्या क्या कौन से तरह के सेल से बनता है, क्या क्या सेल उसमें रहता है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। So these actually the connective tissues are the most abundant and widely distributed. Already we know that, and the connective tissues have two major components. ठीक है, तो connective tissue जो है इसका composition क्या है? It is having basically two major, it's made up of two major components. connective tissue को अगर हम study करेंगे तो उसमें जो सबसे important components है वो दो तरह के, क्या है? पहला, the first one is the cell secreting the fibers. Cell होता है which is secreting fibers. कौन से फाइबर secrete करता है? Collagen and elastin. मतलब कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या मिलेगा? स्पेशलाइज सेल मिलेगा। पहला तो है क्या है कॉम्पोजिशन में, पहला दो तरह की चीज, दो कंपोनेंट से कनेक्टिव टिश्यू बनता है। पहला जो है कंपोनेंट वो क्या है? एक स्पेशलाइज सेल है, उसका काम क्या है? टू सीक्रेट फाइबर्स। और वो फाइबर्स कितने तरह का सीक्रेट करता है? दो तरह का फाइबर्स, एक होता है कोलेजन फाइबर्स कहते हैं हम जिसे, दूसरा क्या होता है? इलास्टिन, ठीक है। और वही सेम सेल जो कि फाइबर सीक्रेट करता है कोलेजन एंड इलास्टिन, वो और क्या करता है? It also secrete modified polysaccharides, ठीक है। तो स्पेशलाइज सेल होता है, पहला होता है क्या? स्पेशलाइज सेल, उसका काम क्या है? फाइबर रिलीज करना, फाइबर सीक्रेट करना, और क्या काम है? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स भी सीक्रेट करना, दो काम करता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का पहला जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, वो क्या है? स्पेशलाइज सेल। काम क्या है उसका? दो तरह की चीज को सीक्रेट करना, पहला फाइबर सीक्रेट करना, दूसरा पॉलीसैकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करना। फाइबर्स क्या क्या सीक्रेट करता है? कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर में क्या डिफरेंस है, ओके। सो द मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड मेक द ग्राउंड टिश्यू। अब देखो, जो पहला सेल हमने देखा, कंपोनेंट जो हमने अभी देखा, मेजर कंपोनेंट्स है कनेक्टिव टिश्यूज का, पहला तो है उसका स्पेशलाइज सेल। काम क्या है इसका? दो काम, एक है आपका फाइबर सीक्रेट करता है कोलेजन, या तो मतलब कोलेजन भी सीक्रेट करता है, और क्या सीक्रेट करता है? इलास्टिन, दो तरह का फाइबर्स। और क्या करता है? स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। अब ये जो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है, इसका क्या फंक्शन है? इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द मैट्रिक्स और ग्राउंड टिश्यू। ये बहुत जरूरी है कि ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या है सर, मैट्रिक्स का मतलब क्या, इसको थोड़ा समझते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। इसको अगर नहीं समझ में आया आपको, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जैसे आप सबको पता है कि जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? पानी है, वी हैव वाटर, वी हैव मिनरल्स, वी हैव अदर न्यूट्रिएंट्स, राइट। क्या आप इसको ब्लड कहेंगे? अगर मैं पानी लेता हूं, उसमें सिर्फ हमारे पास मिनरल्स हैं, विटामिन्स है और सारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो है, तो हम इसे ब्लड मानेंगे क्या? क्योंकि ब्लड में भी तो ये सारा चीज होता है, मिनरल्स होता है, व्हाट, बिकॉज ब्लड इज द मीडियम, द ब्लड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन लिक्विड मीडियम, एंड व्हाट इज अ लिक्विड? दैट इज वाटर। और उसमें क्या क्या रहता है? उसमें प्रोटीन्स रहता है, सॉरी, उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है, प्रोटीन्स आल्सो इंक्लूडेड इन दैट, विटामिन्स, मिनरल्स सब रहते हैं, लेकिन हम उसे ब्लड कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो हम ब्लड से कब कहेंगे? जब उस कंपोजिशन में हम देखेंगे ब्लड कॉर्पसल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जब ये सारी चीजें होंगी, और प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, सारे प्रोटीन्स वो रहेंगे, तब हम इस स्ट्रक्चर को, तब हम इस कंपोजिशन को कह सकते हैं कि ये क्या है? ब्लड है ना। तब हम इसे कह सकते हैं ये ब्लड है। उसके पहले हम इसे ब्लड कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा, यहाँ पे जो ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें बहुत सारे कॉम्पोजिशन से क्या है? कॉर्पसल्स इसका कॉम्पोजिशन है, कॉर्पसल्स, ठीक है। क्या क्या कॉर्पसल्स में हमें मिलेगा कॉम्पोजिशन में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो डिफरेंट तरह के ब्लड प्लाज्मा है वो मिलेंगे। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है, ये क्या है? ब्लड जो है, जो कनेक्टिव टिश्यू, इसका कंपोनेंट्स है बेसिकली, है ना। लेकिन इन जनरल हम जब कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो उसमें हमारा कंपोजिशन क्या है? स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ब्लड जो है वो किस मीडियम में है?
किस मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स मतलब मीडियम होता है, ठीक है। ये लिक्विड मीडियम, यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स? वाटर इज द मैट्रिक्स। वैसे ही जो कनेक्टिव टिश्यू होता है तो नॉर्मली उसमें जो उसका जो होता है, जो उसका मैट्रिक्स होता है वो या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा। तो लिक्विड है मतलब पानी हो सकता है और साथ में और क्या हो सकता है, अलग जो डिफरेंट तरह के जो सब्सटेंसेस वो भी हो सकते हैं। तो वैसे ही जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो मैट्रिक्स है या मीडियम है जिसके अंदर बाकी जो दूसरे जो सेल्स है, बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स है कनेक्टिव टिश्यूज के, वो वहां पे रहते हैं और वो सब मिलके क्या बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं? जो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स है सीक्रेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल दैट सर्व्स एज द मैट्रिक्स और ग्राउंड टिश्यू। ये मैट्रिक्स है या ग्राउंड टिश्यू है, इसी के अंदर सारे जो अदर कंपोनेंट्स है, फाइबर्स, कोलेजन जो हमने बात किया, कोलेजन, इलास्टिन और भी आगे हम पढ़ेंगे, वो सब इसी के अंदर रहता है, इसी के अंदर। सो इट इज प्रोवाइडिंग मीडियम। जैसे कि हम कहां रहते हैं? धरती पे रहते हैं। धरती पे तो हम कहां रहते हैं? पानी में या लैंड में? तो लैंड में रहते हैं तो हम हमारे चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है। सो वी आर लिविंग इनसाइड द एटमॉस्फेयर। हमारा जो मीडियम है, हम जिसके अंदर रहते हैं, वो क्या है? दैट इज द एटमॉस्फेयर, राइट। सो अगर पानी में कोई जीव रहता है तो उसका एटमॉस्फेयर क्या है? उसका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? वाटर है। सो फॉर देम द वाटर इज एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे लिए क्या है? मीडियम। पानी में जो जीव रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनके लिए मीडियम क्या है? वाटर है। हमारे लिए मीडियम क्या है? एयर है, एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल वैसे ही जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो मीडियम, उसका जो मैट्रिक्स है वो किससे बनता है? पॉलीसैकेराइड से बनता है, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड से बनता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मीडियम या ग्राउंड टिश्यू, जिसे हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, whatever you call it, ठीक है। Now the matrix is that substance in which the cells and fibers are distributed. अभी मैंने वही आपको बताया। तो मैट्रिक्स क्या है? It is the medium or it's a substance in which the cells and fibers are distributed, ठीक है। तो मैट्रिक्स है वो बेस है एक्चुअली इसका, किसी भी टिश्यू का। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का वो बेस है, उसके अंदर बाकी जो सारे फाइबर्स है, बाकी जो सारे इंपॉर्टेंट सेल्स है, वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। एंड देयर इज ओनली वन कनेक्टिव टिश्यू विदाउट फाइबर। अब देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि ब्लड का एग्जांपल लिया था। तो ब्लड में हमने क्या बात किया? उसमें विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, आपके ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, लेकिन हमने बात किया फाइबर्स होता है क्या? नहीं होता है। तो ब्लड एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोई भी फाइबर्स नहीं होता, ठीक है। सो देयर इज ओनली वन कनेक्टिव टिश्यू दैट टिश्यू विदाउट फाइबर, दैट इज योर ब्लड और मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो जो मस्कुलर टिश्यू है जैसे कि ब्लड एंड लिम्फ, उसमें क्या होता है कि जो फाइबर्स है वो जैसे कि कोलेजन या इलास्टिन वो एब्सेंट होते, वो नहीं होते, ठीक है। नाउ द कनेक्टिव टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग। तो हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और देखेंगे उसके कितने कैटेगरीज हैं, ठीक है। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज्ड और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? नाम से पता चल रहा होगा आपको, जो इस कनेक्टिव टिश्यू में जो भी आपके इसके कंपोनेंट्स है दे आर अरेंज्ड लूजली। सिंपल है, लूजली अगर अरेंज इस टिश्यू में, इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? जो भी इसके कंपोनेंट्स है वो क्या होता है? लूजली अरेंज होते हैं। द सेल्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या है? जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी सेल्स इसके कंपोनेंट है वो क्या होता है? दे आर अरेंज्ड लूजली, ठीक है। तो ग्राउंड दैट इज इन द ग्राउंड टिश्यू और इन द मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये जो लूज मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है हम जो कह सकते हैं एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो हम अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी हम जो कनेक्टिव टिश्यू उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, मतलब कैटेगरीज पढ़ लेते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। कहां पे मिलता है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू? अंडर द स्किन, ठीक है। और ये जो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू है दिस इज द मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू। तो वो पहला हो गया। दूसरा क्या कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू को? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। So loose connective tissue can be divided into two categories. One is your areolar connective tissue. Second one is your adipose connective tissue. ठीक है। अब adipose connective tissue को हम commonly क्या कहते हैं? We call it as fat. क्या कहते हैं इसे? Fat कहते हैं commonly.
ठीक है, हम कहते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू में हमारे जो फैट है, हमारे बेली फैट या हमारे बॉडी में जो फैट जम जाता है, जो डिपॉजिट हो जाता है, वो एक्चुअली एडिपोज टिश्यूज होता है। ठीक है, तो वो उसे हम बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में कि वो होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पहला तो हो गया लूज, नेक्स्ट इज डेंस। डेंस मतलब द फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज। पिछले केस में क्या था, जो भी कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, लूजली अरेंज थे, उसमें सेल्स थे, फाइबर्स थे। अब इसमें क्या है, जो फाइबर्स और सेल्स है वो मैट्रिक्स में या मीडियम में क्या होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स इन द टिश्यू इट कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। जैसे हमने लूज कनेक्टिव टिश्यूज को कैटेगराइज किया था, बिल्कुल वैसे ही जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ पे क्या है ना, फाइबर्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स, फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा है, हाउ दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, उसके बेसिस में हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी क्लासिफाई किया है फर्दर टू कैटेगरीज में। पहला डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो हमें कहां मिलता है, ज्यादातर हमें मिलता है मतलब जो स्किन है उसके नीचे। ठीक है, पहले बात करेंगे जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव, जो डेंस रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है, इट कैन अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अगेन। ठीक है, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम फिर से दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं, जो डेंस मतलब रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर से बनता है, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर से बनता है, उसे हम कहते हैं व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोलेजन फाइबर से उसका कलर जो है वो व्हाइटिश होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, कोलेजन किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए उस फाइबर का हमने उस टिश्यू का नाम क्या हमने रख दिया, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, टेंडन्स आर द एग्जांपल ऑफ द व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट येलो, नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट टाइप क्या है, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का, दैट इज योर येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या है, in this case the tissue is actually made up of the fiber which is elastin। हमने बात किया था शुरू में, दो तरह के फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए, एक होता है इलास्टिन, दूसरा होता है कोलेजन। फर्स्ट होता है कोलेजन, दूसरा होता है इलास्टिन। तो यहाँ पे दूसरा जो कैटेगरी है उसमें हमने क्या देखा, जो इलास्टिन फाइबर है उससे बना होता है जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसे हम कहते हैं येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इलास्टिन है इसका कलर जो है येलो होता है। ठीक है, कलर क्या होता है इसका, येलो, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का। जैसे पहले हमने व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या था, लिगामेंट, सॉरी टेंडन था, इसका एग्जांपल है लिगामेंट। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने डेंस पढ़ लिया, लूज पढ़ लिया, और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में देख लेते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इट इज एक्चुअली कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और जैसे हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एग्जांपल क्या है, ब्लड एंड लिम्फ। देखो नॉर्मली जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो है डेंस हो जाएगा या तो लूज हो जाएगा, जिसमें फाइबर डेंसली अरेंज होगा या तो लूजली अरेंज होगा, दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी है जो स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स होते ही नहीं बहुत सारे केसेस में। ठीक है, तो वैसा अगर है फाइबर्स नहीं है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या है फाइबर्स नहीं होते हैं। वो क्या एग्जांपल, उसका एग्जांपल क्या है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड वो भी कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन उसमें फाइबर्स होते हैं क्या, अभी हमने डिस्कस किया, नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्पेशल टाइप हो गया। नेक्स्ट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। Skeletal connective tissue क्या है, in this tissue the matrix is very compact। skeletal connective tissue क्या होता है, it is a tissue in this the matrix is very compact and these are also of two types। अब जो पहले हमने देखा कि जो dense connective tissue उसमें जो फाइबर्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, लेकिन skeletal connective tissue है ना, ये थोड़ा और नेक्स्ट लेवल हम जाएंगे कॉम्पैक्टनेस का, या अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, ये और ज्यादा कॉम्पैक्टली वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं यहाँ पे जो टिश्यू, जो फाइबर्स है इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है इसमें बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, वहां पे जो फाइबर्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स ही बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब
जैसे बोन्स में हम क्या देखेंगे, बोन्स का मैट्रिक्स क्या है, किस मीडियम में बोन्स रहता है, मतलब बोन्स में क्या कॉम्पोजिशन मेन क्या है, उसमें फास्फोरस एंड कैल्शियम होता है. So phosphorus and calcium, they are actually arranged, they are actually present in a very compact state. That's why the bone are very tough, very tough in nature, right? So अभी जो skeleton connective tissue है, इसको भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. पहला है बोन, दूसरा है कार्टिलेज. बोन को भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. बोन भी दो तरह के होते हैं, कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, स्पंजी हो सकते हैं. ठीक है ना, हम बात करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे. बोन भी दो तरह के हो सकते हैं, मतलब जो सॉफ्ट टाइप के बोन होते हैं, स्पंजी जैसे हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है. कॉम्पैक्ट मतलब बहुत टफ भी हो सकते हैं. कार्टिलेज भी तीन तरह के हो सकते हैं. ठीक है, देखो बोन और कार्टिलेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है, जो कार्टिलेज है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है. जैसे आप अपने कान में हाथ दोगे तो कान आपका जो है, आप अपने कान को, जो एक्सटर्नल ईयर है आपका, ईयर पिना है, उसे आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हो. लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि आपके जो हैंड, आपके जो हाथ है, आपके जो लाइक द पार्ट, द हैंड पार्ट, द बोन पार्ट, कैन यू बेंड योर बोन, कैन यू बेंड योर बोन ऑफ योर हैंड? आपके हाथ के जो बोन है उसको आप बेंड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. लेकिन आप अपने कान को, कान को है वो आप उसको बेंड कर सकते हो, क्योंकि जो कान है, जो आपके एक्सटर्नल ईयर है, पिना है, वो क्या है ना, वो बना है कार्टिलेज से, इसीलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और वो सॉफ्ट होता है. लेकिन बोन जो होता है वो हार्ड होता है. ठीक है, तो हम आगे और पढ़ेंगे. तो जो कार्टिलेज है वो तीन तरह का होता है. एक होता है आपका हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज, तीसरा होता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज. ठीक है, नेक्स्ट इज, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एज वेल. एक होता है आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, हम पढ़ेंगे आगे जाके. देन द नेक्स्ट वन इज म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सो देयर आर फोर. एक हो गया आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, हम कभी-कभी हम बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ठीक है, वो एक्चुअली है क्या? See, the connective tissue proper is that tissue which is mesodermal in origin and have fibers and cells. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हम किसे कहते हैं? जो कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मली ओरिजिन है, मतलब मेसोडर्म से बना है. ओरिजिन कहां से है? मेसोडर्म से है, और जिसमें फाइबर्स और सेल दोनों ही है. ठीक है, एक तो मेसोडर्म से बना है, दूसरा है कि उसमें फाइबर्स भी है, सेल्स भी है. ऐसा जो कनेक्टिव टिश्यूज है उसे हम कहते हैं, इस तरह के जो कनेक्टिव टिश्यू है उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ठीक है, now loose and dense connective tissue together known as connective tissue proper. तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं. इसीलिए हमने जो तीसरा कैटेगरी हमने बनाया है ना, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, वो तीसरा कैटेगरी है, जो नॉर्मल जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे अलग है. नॉर्मल जो कनेक्टिव टिश्यू है उसी को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. तो इसमें समझ लीजिए, जो डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और स्टैंडर्ड लाइक द वे वी कैन अंडरस्टैंड द कनेक्टिव टिश्यू, the way the connective tissue should be, right? So that is your loose connective tissue and dense connective tissue. इसी को हम कहते हैं टिश्यू connective tissue proper. ठीक है, so at the end we can see a table, you can see on your screen. This table is very important, so you can make this table, and if you have this table, so in a single row you can understand the things very clearly, and you can remember the things very clearly. तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने किस किस पार्ट में, एक बार देख लेते हैं टेबल को. कनेक्टिव टिश्यू को हमने बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने किस पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. सीटी स्टैंड फॉर कनेक्टिव टिश्यू. ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड किया है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर. डेंस रेगुलर अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. व्हाइट फाइबरस टिश्यू जो कि कोलाजन से बनता है, व्हाइट कलर का होता है, इसलिए व्हाइट फाइबरस टिश्यू. दूसरा है येलो फाइबरस टिश्यू जो कि इलास्टिन से बनता है, जिसका कलर जो है वो येलो होता है. अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू चार तरह के होते हैं. पहला है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो दो तरह का होता है. एक होता है ब्लड या तो दूसरा लिम्फ. इसमें क्या नहीं होता? इसमें फाइबर्स नहीं होता. नॉर्मली हमने क्या देखा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर किसको हम कहते हैं? जिसमें फाइबर्स भी होगा, सेल्स भी होगा, जो किस किस पे हमें मिलेगा? लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड में हमें, या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हमें वो नहीं भी मिल सकता. तो हम देख रहे हैं ब्लड जो है वेस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या है? जो फाइबर्स है वो नहीं. अभी दूसरा एग्जांपल, दूसरा कैटेगरी, दूसरा टाइप है स्पेशल जो कनेक्टिव टिश्यू, उसका है स्केलेटन और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं. एक होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज. बोन को हमने दो तरह से डिवाइड किया है, कॉम्पैक्ट या स्पंजी.
आप कार्टिलेज को भी तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज. And there are the last, after that there are two more special connective tissue. One is called reticular connective tissue, fourth one is called mucoid connective tissue. So this is the, you know, like this is the classification of the connective tissue. If you classify the connective tissue in different types, so these are the different types in which we can classify the connective tissue. Right. Now we will study and we will start to study the connective tissue in detail one by one. Right. So we'll start with the first one, that is your areolar connective tissue. अब areolar connective tissue क्या है, बात करते हैं. It is a loose connective tissue. ये क्या है? It is, हमने areolar connective tissue का जो टाइप है वो किसके अंदर में आता है? loose connective tissues के अंदर में आता है, ठीक है ना? So it is a loose connective tissue and it have three different types of cells. ये क्या है? ये loose connective tissue है और इसमें कितने तरह के सेल्स है? इसमें तीन तरह के सेल से बनते हैं. पहला क्या है? अभी देखो एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू ये है क्या? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है और इसका कॉम्पोजिशन क्या है? ये किस किस क्या क्या जो पार्ट है इससे बना, किससे बना है, मतलब किससे बनता है, इसके पार्ट्स के अगर हम स्टडी करेंगे एरियोलर टिश्यू के डिटेल में तो हमें मिलेगा ये जो बना हुआ है, इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो पार्ट्स है जिससे ये एरियोलर टिश्यू बनता है, कनेक्टिव टिश्यू, वो क्या क्या है? पहला, एरियोलर टिश्यू में हमें क्या मिलेगा? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? दीज आर सेल्स, दीज आर लार्ज इरेगुलर सेल्स और उसमें क्या होता है? They are having long protoplasmic processes. हम डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस मतलब देखो जो प्रोटोप्लाज्म होता है या जो आपकी जो सेलुलर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई होके लॉन्ग, यू नो, लाइक सीलिया टाइप प्रोसेसेस बना देता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस. तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है? दिस आर इरेगुलर शेप, मतलब प्रॉपर कोई शेप नहीं होता इसका, इस सेल का, और साइज क्या होता है? बड़ा होता है. दे आर बिग इन साइज, दे आर लार्ज इन साइज एंड आल्सो दे हैव प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस व्हिच आर आल्सो लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस आर देयर, नॉट शॉर्ट, छोटे-छोटे नहीं होते, बस काफी लंबे-लंबे इनके जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस वो होते हैं. काम क्या है इसका? इट सीक्रेट्स प्रोटीन्स व्हिच आर कोलेजन एंड इलास्टिन. ये क्या सीक्रेट करते हैं? इनका काम भी होता है ना, ऐसे थोड़े ना मतलब सेल में रहेंगे ये. इसका काम क्या है? ये सेल का काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? इट सीक्रेट प्रोटीन्स which are collagen and elastin. ठीक है, ये क्या सीक्रेट करते हैं? कोलेजन सीक्रेट करते हैं एंड इलास्टिन सीक्रेट करते हैं. अब जो कोलेजन है दिस आर व्हाइट एंड दैट इज व्हाई आल्सो नोन एज व्हाइट फाइबर्स. इलास्टिन जो है वो येलो कलर का होता है, हमने पहले भी देखा, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज येलो फाइबर. अब क्या है? जो कोलेजन है दे आर बेसिकली अनब्रांच्ड एंड ऑलवेज फाउंड इन बंडल्स. कोलेजन जो होगा इसका फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक तो इस पे कोई ब्रांचेस नहीं होता, ये ब्रांच नहीं होता और ये हमेशा बंडल्स में होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैव गिवन दिस स्मॉल डायग्राम आल्सो. मतलब मान लीजिए कि कोलेजन है तो वो ब्रांच नहीं, मतलब ऐसे सिंगल फाइबर्स ऐसे रहते हैं और वो ऐसे बहुत सारे फाइबर्स एक साथ रहते हैं, बंडल्स, ठीक है. तो वही मैंने यहाँ पे बनाया, एंड दे आर डेंसली पैक्ड, ठीक है, ऐसे बंडल्स में रहते हैं. तो कोलेजन जो है उनमें कोई ब्रांच नहीं होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होता है इन फाइबर्स में और वो एक साथ रहते हैं, बंडल्स में रहते हैं. लेकिन येलो इलास्टिन फाइबर जो नॉर्मली सिंगल होते हैं, इसमें ये एक साथ नहीं रहते, बंडल्स में नहीं रहते. और क्या होता है इसमें? ब्रांचेस भी हमें दिखते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम, these are branched. Elastin fibers are having branch. They are not unbranched. They are having branch and they are present. They are not present in a bundle. They are present. They are present. You know, like normally they are single actually. ये हो गया आपका पहला कंपोनेंट जो आपका एरियोलर टिश्यू का है. That is your fibroblast. ठीक है. दूसरा क्या रहता है फाइब्रोब्लास्ट के बाद? दूसरा क्या रहता है, मतलब दूसरा क्या कंपोनेंट है आपके एरियोलर टिश्यू के? पहला तो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, दूसरा क्या है? मैक्रोफेजेस. क्या रहता है दूसरा? मैक्रोफेजेस रहता है, ठीक है. these are also cells but these are phagocytic cells. एक तो बहुत बड़ा शेप का इरेगुलर शेप का सेल रहता है जिसको हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, उसका काम है इलास्टिन और कोलेजन को सीक्रेट करना. दूसरा क्या सेल रहता है? मैक्रोफेजेस रहता है, जो है उसका काम क्या है? इट इज अ फेगोसाइटिक सेल, ठीक है. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज फेगोसाइटिक, व्हाट आर फेगोसाइटिक, हमने डिस्कस किया था, फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, राइट. नाउ नेक्स्ट इज मास्ट सेल. तीसरा कंपोनेंट क्या है? मास्ट सेल. तीन तरह के सेल होते हैं, पहला हमने देख लिया फाइब्रोब्लास्ट सेल, दूसरा क्या है? मैक्रोफेजेस, सॉरी जो दूसरा हमने अभी क्या देखा? दैट इज योर मैक्रोफेजेस, राइट. So macrophages are, you know what, these are
यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर देना, दिस इज नॉट मैक्रोफेजेस, दिस इज मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस आर नथिंग बट दिस आर लार्ज फेगोसाइटिक सेल। तीसरा कंपोनेंट क्या है, मस्ट सेल, ठीक है। सो मस्ट सेल क्या है, दीज आर सेल्स व्हिच आर लार्ज एंड ओवॉइड इन शेप। मस्ट सेल क्या है ना, ये बहुत बड़े होते हैं स्ट्रक्चर में, और क्या होते हैं, दे आर ओवॉइड, ओवॉइड जो स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है, ओवल शेप के, ओवॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। काम क्या होता है इनका, दे सिक्रीट, सब सेल का तो कोई फंक्शन होगा, सो इसका काम क्या है, दे सिक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ओके। क्या क्या सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, क्या काम है, डिस्कस करते हैं। पहला सब्सटेंस जो ये सिक्रीट करते हैं वो होता है, वो है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है, विच इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन कब सिक्रेट होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है इसलिए, ठीक है ना। और ये हमारे जो मतलब ऑल ओवर जो हमारे स्किन है, हमारे हमारे जो इस पार्ट में ये हम देखेंगे जो एलर्जिक रिएक्शन हमें ये देखने मिलेगा। एलर्जी रिएक्शन मतलब किसी भी चीज से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारे स्किन में लग गया तो उससे एलर्जी हो सकता है, हमने कुछ खा लिया उससे एलर्जी हो सकता है। जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, जब फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो हमारा बॉडी इंटरेक्ट करता है। जब इंटरेक्ट करता है तो ये मसल जो है ना, ये बर्स्ट हो जाते हैं, ये रप्चर हो जाते हैं, और इसमें से क्या निकल जाएगा, हिस्टामिन निकल जाता है। काम क्या है इसका, ये जो हमें अभी हम जब आपने सबको कभी ना कभी एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा, एलर्जी हुआ होगा, तो आप देखना कि आपको थोड़ा सा इचिंग हो सकता है उस पार्ट में, स्वेलिंग हो जाएगा, आपको ब्रीदिंग में चेंजेस आ जाएगा, आपके आपके रैशेस आ जाएंगे। सो दिस आर दी सिम्टम्स, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हिस्टामिन, ठीक है, जो किस सेल में रहता है, मस्ट सेल में रहता है। इसीलिए हम जब भी कोई दवाई खाते हैं, मतलब एलर्जी की एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन है, वो क्या होता है, एक्चुअली होता है एंटी हिस्टामिन मेडिसिन, ठीक है। हम एक्चुअली क्या खा रहे हैं, एंटी हिस्टामिन। जो हिस्टामिन का जो क्वांटिटी है, बिकॉज ऑफ इट इज प्रेजेंट इनसाइड द मस्ट सेल, जब तक ये मस्ट सेल के अंदर रहता है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये बाहर आ जाता है तो ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। तो उसका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटी हिस्टामिन जो मेडिसिन उसको कंज्यूम करते हैं। इससे जो एलर्जिक रिएक्शन वो बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेरिन। मस्ट सेल और क्या सीक्रेट करता है, हेपेरिन भी सीक्रेट करता है। इट इज एंटीकोआगुलेंट। इसका काम क्या है, एंटीकोआगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉट करना, ठीक है। एंटीकोआगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉट बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, प्लीज करेक्ट इट। एंटीकोआगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉटिंग से, ब्लड को क्लॉट होने से बचाना। अब देखो हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी इट इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट देयर इज अ चांस दैट इट कैन आल्सो गेट क्लॉट समवेयर। क्योंकि हमारे बॉडी में ये हेपेरिन जो सीक्रेट करता है मस्ट सेल, जो कि एंटीकोआगुलेंट है, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो जो है वो क्लॉट नहीं होता है। सो हमको ये हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट होने से, ठीक है, रोकता है ब्लड को क्लॉट होने से, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन क्या है, ये और एक सब्सटेंस है जो कि मस्ट सेल सीक्रेट करता है। सो सॉरी सीक्रेटिन नहीं है, सेरोटोनिन, माय मिस्टेक, सेरोटोनिन। सो सेरोटोनिन जो है, यहाँ भी थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लेना, यहाँ सेरोटोनिन होगा, सेरोटोनिक नहीं होगा, सेरोटोनिन, यहाँ पे एन होगा, सो यू प्लीज करेक्ट, दिस इज सेरोटोनिन। सो इट इज स्टोर्ड इन द मस्ट सेल। ये जो सारे जो सिक्रीशन है वो मस्ट सेल में ही रहते हैं, ठीक है ना, मस्ट सेल में मस्ट सेल से सीक्रेट करता है, एंड हैव वेरियस फंक्शंस। ये सेरोटोनिन के बहुत सारे फंक्शंस है, तो हम सब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे हम इसका एक फंक्शन हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये इट इज आल्सो वर्किंग एज अ न्यूरोट्रांसमीटर आल्सो। तो सेरोटोनिन मतलब डिमांड्स के डिपेंड करता है, क्या जरूरत क्या है, उसके हिसाब से डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरह से ये फंक्शन करता है। तो उसके बहुत सारे फंक्शंस है which is not needed to discuss in this chapter. Okay, so if it is required we'll discuss in later on. Now this is the diagrammatic representation of the areolar connective tissue. तो ये जो हम अभी देख रहे हैं, this is the diagrammatic representation of areolar connective tissue. अगर हम areolar connective tissue हम देखेंगे, अभी तक हमने बात किया ना कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि द ग्राउंड टिश्यू, द मैट्रिक्स, ठीक है। तो हर एक कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड टिश्यू होगा ना, तो ग्राउंड टिश्यू है जो हमने देखा है मैट्रिक्स या ग्राउंड टिश्यू, जो डॉट 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 मैंने डॉट डॉट में बनाया है, दोस आर दी ग्राउंड टिश्यू और मैट्रिक्स, ठीक है। जो नॉर्मली जो आपके स्पेशलाइज्ड जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, वो होते हैं ग्राउंड टिश्यू। और बाकी जो मेन कंपोनेंट्स क्या है लूज और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का, फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में हमने बात किया था।
देखो ये जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। तो आप देख सकते हो, these are very large in size, nucleus is present at the center, and you can see there are processes. Can you see the processes, finger like processes, and they are long. These processes are called protoplasmic processes. So the cells which are fibroblast, this is the first component, and these fibroblast cells are actually having the long processes, and these processes are like present in case of fibroblast cells, and these processes are called protoplasmic processes. ठीक है, तो ये भी फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये भी फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इसमें भी आप देखोगे बहुत सारे लंबे लंबे प्रोसेस है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस है और प्रोटोप्लास्मिक प्रोसेसेस है। ठीक है, ये जो सेल है इसी का काम है जो आपके इलास्टिन है उसको सीक्रेट करना, या कोलेजन है उसको सीक्रेट करना, फाइबर्स को सीक्रेट करना। इलास्टिन और कोलेजन दोनों को यही सीक्रेट करता है। ठीक है ना, तो ये पहला कंपोनेंट था। दूसरा है, हमने बात किया था कोलेजन फाइबर्स। तो आप देख सकते हो कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट एंड दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स। ठीक है ना, अनब्रांच्ड, दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स। तो ये जो है आप देख सकते हो कोलेजन फाइबर्स, राइट। एंड देन वी कैन आल्सो हैव इलास्टिन व्हिच आर सिंगली, दे आर प्रेजेंट सिंगल, अकेले हैं, एंड दे आर आल्सो ब्रांच्ड, ब्रांच भी होते हैं, हमने पढ़ा था। Then we have discussed there is the other components. Second component, that is your macrophages, which are also irregular shaped cells, right? ये जो सारे हैं ये क्या है, macrophages है, these are irregular shaped cells, and काम क्या है इसका, these are irregular large phagocytic cells. ठीक है, phagocytosis करना ही इनका काम है। नेक्स्ट हमने बात किया था मस्ट सेल्स, देख सकते हो यहाँ पे ओवॉइड शेप स्ट्रक्चर, ये भी मस्ट सेल है, ये भी मस्ट सेल है। So these are mast cell. ठीक है, so together we can see this is the total, this is the typical diagram of the connective tissue, areolar connective tissue। तो इसके ये सारे components है जिसमें हम देख सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल है, macrophages है, then we have the collagen, then elastin, then we have mast cell, right? So all the different components are present, what we can see in this diagram. So this is the diagrammatic representation of areolar connective tissue, right? अभी एरोलार कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, लोकेशन क्या है, हमें कहां मिलता है, we can find this areolar connective tissue under the skin or any epidermis, जो भी एपिडर्मिस हमारे पास है उसके मतलब वहां पे हमें ये एरियोलर टिश्यू मिलेगा। ठीक है, so till today we'll talk this much only, so in the next video lecture we'll continue, so till then take care, stay at home, be safe.